Let's start. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Free Educators. This is session number 29th of Communication Skills Learning and Development class. So let's have a quick recap of what we have learned earlier. In the previous session, we started a new section that is called Learn with the News, where one of you has to read the news and there are questions as well. So one among you has to read the news and others have to listen very carefully and answer the questions that are after that. Apart from that, we understood a new definition of the word about. So previously about is related to the location in a particular area, but about is also related to the presence or absence of someone. Like children are about, Ahmed is about, you are about in the evening, or are you about in tomorrow in the office. So this gives a brief idea about the presence or absence of someone. And then in the business English section we understood a language for giving feedbacks. Apart from that, the word root analysis, these are the words that we understood. And okay, we only understood three, sorry, and there were four. I guess the fourth one was lex, which I mistakenly have removed, and then the rules of active passive voice, which is completed now. Now starting from today, here comes the legacy. ऑफिस के काम से क्या होता है देखा, चीजें इधर उधर होती है. So let's start the session, verbal skills. So today we are going to read a news once again, which is called Brazilian trucker strike. अब ये जो न्यूज़ है ये एक हफ्ता पुरानी न्यूज़ है. पिछले संडे को आई गेस, हाँ, मतलब एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, ब्राजील में काफी बड़ी स्ट्राइक हो गई थी और वो ट्रक्स ने स्ट्राइक की थी, जिसको हेडलाइन दिया गया था द स्ट्राइक ऑफ ट्रक्स. ये ट्रक्स क्या थे, ये खुश नहीं थे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज से और इन्होंने पूरा रास्ता रोक दिया था ब्राजील के अंदर आने का और ब्राजील से बाहर जाने का. और इनका मेन मुद्दा ऑयल प्राइसेस को लेकर था. सो गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइस कम तो किए थे, बट इन्होंने स्ट्राइक फिर भी जारी रखी कुछ देर तक. और जो पुलिस डिपार्टमेंट था वहां का, वो काफी वरीड हो चुका था कि ये स्ट्राइक कहीं कुछ और मोड़ ना ले ले. इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं हाईवे पे, बंद पड़ी हुई हैं, कोई आग वाग ना लगा ले या कोई वॉयलेंस ना क्रिएट हो जाए, इतने सारे लोग एक साथ हाईवेज पर आगे हैं. तो ये सारा वाक्य इसी चीज के आगे पीछे घूम रहा था, बट लकीली वहां कुछ हुआ नहीं. गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइस कम किए और स्ट्राइक खत्म हो गई कुछ देर के बाद. एवरीबॉडी वेंट होम वेरी हैप्पी. और आज अगर देखो तो ब्राजील का ऑयल प्राइस बहुत सस्ता हो चुका है सिर्फ इस स्ट्राइक की वजह से. सो कौन रीड करेगा इस न्यूज को आज? Who will read this news? Who has read it yesterday? मरियम, आपने किया था लास्ट टाइम. आज कौन करेगा? ठीक है, फिर मरियम नहीं करेंगी. आज वो करेगा जिसने नहीं किया था. तो आज हम बंदे भी बहुत कम है. एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट. इट्स ऑन यू. रक्षंदा, उरूस, नजाकत, फैसल. अरे पूरा दिन नहीं है हमारे पास, स्टार्ट करो. It has been 1 week since Brazilian truckers began striking. They have सी रक्षंदा, एक चीज है, आपको इसको ऐसे पढ़ना है जैसे न्यूज पढ़ी जाती है. सो फर्स्ट रीड द हेडलाइन एंड देन द न्यूज. एंड एवरीवन okay. एल्स प्लीज लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज इसके बाद क्वेश्चंस आएंगे. The स्टार्ट. strike of trucks. It has been 1 week since Brazilian truckers began striking. They have been blockading major roads, causing the country to slowly grind to a halt over the fuel price. On Saturday, the government met and made concessions, but were they enough? At the moment, the strike continues, though there is no scarcity of fuel in the cities. Despite the reduction of fuel prices by the government, the truckers are still amplifying the blockade. The police is rattling about the consequences. Thank you, Rakshanda. Thank you very much. You have done a wonderful job by reading it out in the same way as the news is read, supposed to be read. अब हुआ क्या है इसमें? देखो, ब्राजील की ये न्यूज पॉपुलर क्यों हुई? स्ट्राइक्स तो हर जगह होती हैं. ब्राजील की ये न्यूज इसलिए पॉपुलर हुई कि एक तो ये स्ट्राइक सारा फ्यूल प्राइसेस के ऊपर बेस्ड था. ये जो स्ट्राइक थी ट्रकर्स की, ये सारी ऑयल प्राइसेस के ऊपर बेस्ड थी, तेल के भाव के ऊपर बेस्ड थी. और इस स्ट्राइक के चलते ब्राजील में किसी चीज की कमी नहीं आई. मतलब
ऐसा नहीं हुआ कि तेल आना बंद हो गया या प्याज आना बंद हो गया और प्राइसेस हाई चले गए। सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी फाइन, और गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज भी किया ब्राजील की कि हाँ ठीक है, ऑयल प्राइस ज्यादा है, हम इसको कम करेंगे, एंड देन दे रिड्यूस द प्राइस। फिर भी स्ट्राइक चलता रहा, देन दे अगेन रिड्यूस द प्राइस, एंड पुलिस जब बहुत वरीड हो गई, देन दे टॉक टू द गाइज हु ऑर्गेनाइज दैट स्ट्राइक कि भाई अब तेल की भाव भी कम हो गए हैं तो प्लीज स्ट्राइक को हटा दो। एंड 3 और 4 days बिफोर ये स्ट्राइक खत्म हो चुकी है, एंड ब्राजील में तेल सस्ता हो चुका है। So coming to the questions, yeah, पहले before going to the questions, please let me know if anyone of you has to reread it again, or जिस किसी को ये पैसेज समझ नहीं आया, because इसके बाद questions होंगे। अभी बहुत basic questions होंगे, I mean don't think कि बहुत tough questions होंगे, line to line questions हैं, बहुत simple है। So let's start with the questions from this section. So question number 1. What is the, just give me 1 second, let me mute someone. Okay, so question number 1 is what is purposefully preventing things going into or out of an area is called? तो चीजों को किसी एरिया के अंदर घुसने या बाहर जाने से रोकने को क्या कहा जाता है? जानबूझकर रोकने को क्या कहा जाता है? Who will tell? Blocking. Blocking or blockade. Very good. What is difficult to get or find is called? Something which is very difficult to get or find. What is this called? Rare. Rare is something precious. It is not precious. Rare, देखो rare क्या होता है? एक rare एक खास चीज होती है जो देखो रेयर जो होता है ना, वो रेयर आप डायमंड्स के लिए यूज करते हो, या रेयर आप एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज के लिए यूज करते हो जो बहुत मुश्किल से मिलती है और बहुत खास होती है। यहाँ पर खास नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि जो मिलती मुश्किल से है और उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू गेट और फाइंड। तो इसको क्या बोलेंगे? जैसे पानी नहीं मिलता आसानी से रेगिस्तान में, बट पानी रेयर तो नहीं है, पानी बहुत है। 3/4 ऑफ अर्थ इज लैंड एंड रेस्ट इज वाटर। नो सॉरी, 3/4 इज वाटर एंड 1/4 इज लैंड। सो पानी की कमी तो नहीं है, बट पानी रेयर नहीं है, सो वी कॉल इट स्कार्स। जैसे हम बोलते हैं ना, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ऑयल, तेल कम हो गया मार्केट में, सो दिस इज कॉल्ड स्कार्स, SCARCE, स्कार्स। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट इज, ये राइट है या रॉन्ग है ये बताइएगा। एम्पलीफाइंग मीन्स इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ समथिंग, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? Who will tell? ये बहुत सिंपल है यार। Yes, Right. it is right. It is right. It is right. Faisal, great. It is actually right. And what is rattling? Rattling क्या होता है? हमने अभी पीछे न्यूज में फ्रेज पढ़ा था यही rattling. So what is rattling? Trying to control. Sorry. Rattling is getting worried or nervous. ठीक है, जैसे पुलिस वाले, the policemen were rattling that something might happen or something may take place, some violence may take place. तो rattling होता है जब आप किसी चीज के लिए नर्वस हो जाते हो या किसी चीज के लिए वरी करने लगते हो, किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचने लगते हो, दैट इज कॉल्ड रैटलिंग। आई होप सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, वर्बल स्किल्स एंड न्यू मीनिंग फॉर एन ओल्ड वर्ड। देखो, लिव इन अ बबल, ये क्या होता है? लिव इन अ बबल, ये हम सब ने शायद अपने दोस्तों को बोला ही है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, बट बिफोर आई से, आप में से किसी को मालूम है कि लिव इन अ बबल क्या होता है? यूज गूगल इफ यू डोंट नो। आपको मैं देख नहीं रहा हूँ, सो यू हैव योर मोबाइल फोन, यूज गूगल एंड फाइंड आउट द मीनिंग एंड लेट मी नो। इससे नॉलेज ही बढ़ेगा, इससे और कुछ नहीं होएगा। चलो मैं बताता हूँ, देखो, लिव इन ए बबल क्या होता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, ये तो कुएं का मेंढक है, इसने दुनिया देखी नहीं है, ये सिर्फ उतना सा ही जानता है जिस एरिया में ये रह रहा है या जिस जगह ये रह रहा है।
जैसे मान लीजिए मैं दूर दराज के इलाके में रहता हूँ, या मैं एक उत्तराखंड की एक पहाड़ी के ऊपर रहता हूँ, बिल्कुल ऊपर पहाड़ी के, और मैं कभी सिटी में आया ही नहीं हूँ, मैंने सिर्फ बर्फ देखी है पूरी उम्र, और मेरे लिए वो बर्फ ही मेरी पूरी जिंदगी है, मेरे लिए वो बर्फ ही पूरी जमीन है। मेरे से कोई पूछेगा यार तूने गर्मी देखी है, मैं बोलूंगा नहीं, हर जगह तो बर्फ होती है। सो मैं एक कुएं का मेंढक हूँ जो उस पर्टिकुलर एरिया में रहा और वहां से बाहर निकला ही नहीं। उस चीज को हम बोलते हैं लिव इन ए बबल। लेकिन जो इसका नया कॉन्टेक्स्ट है लिव इन ए बबल, इसका मतलब होता है कि जब आप नए आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं करो। जैसे हमारे कई सारे एल्डर्स हैं जो पुराने ख्यालात के हैं, जो आज भी औरतों को कहते हैं कि नहीं बाहर काम नहीं करना औरतों ने। दे आर लिविंग इन ए बबल, वो नए ख्यालात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। या फिर जैसे कास्ट सिस्टम को आज भी काफी सारे लोग मानते हैं। सो दे आर लिविंग इन ए बबल। ठीक है, यूजुअली इसका मतलब होता है हैविंग वेरी लेस एक्सपोजर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। बट इसका न्यू मीनिंग है नॉट रियली एक्सेप्टिंग द आइडियाज। एग्जांपल देखते हैं हम इसकी। मेनी पीपल थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इज नॉट रियल, दे आर लिविंग इन ए बबल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज असली नहीं है, और वो बबल में रह रहे हैं, वो अपने ही ख्यालों में है, वो नया आइडिया ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इससे आइडिया हुआ लिविंग इन ए बबल का क्या मीनिंग है। दूसरा है इसका नेल्सन लिव्स इन अ बबल। नेल्सन जो है वो एक बबल में रहता है। ही नेवर ट्राइज न्यू फूड और गोज आउट विद न्यू पीपल। जैसे कुछ पर्टिकुलर एरियाज होते हैं ना, आप मैं क्या कहूँ, जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, वो नया खाने से पहले बहुत सोचते हैं, वो ट्राई नहीं करते। वो कहीं बाहर भी जाएंगे वहां पे भी वो बिरयानी या राजमा चावल या समहाउ गुश्ताबा या कुछ कुछ अपने हिसाब का ढूंढेंगे। वो एक नई जगह जाकर वहां की डिश ट्राई नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि उनको मालूम नहीं है कि ये कैसा टेस्ट करेगा। एंड दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट, दे डोंट वांट टू आई मीन इवेल्युएट देयर टेस्ट बड्स। सो उनके लिए ये अक्सर इस्तेमाल होता है, दे आर लिविंग इन अ बबल। तीसरा है अहमद एंड हिज फ्रेंड्स आर लिविंग इन अ बबल, दे स्टिल थिंक डिजिटल मार्केटिंग विल नॉट अचीव मच। अब आज हम सबको पता है कि हाँ, पेपर में इश्तिहार छापने से या फ्लायर्स बांटने से इतना आप अचीव नहीं कर सकते जितना आप डिजिटल मार्केटिंग से अचीव कर सकते हो। सो जो लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते हम उनको बोलते हैं कि दे आर लिविंग इन अ बबल। क्लियर है सबको? यार जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मेरे ऑफिस वालों को कुछ हो गया आज। दे आर मैसेजिंग मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो ठीक है, छोड़ो, डन। लिविंग इन द बबल क्लियर हुआ सबको? लिविंग इन अ बबल, या किसी को पूछना है इसमें कुछ? चलो ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट पे, बिजनेस इंग्लिश सेक्शन पे, जिसमें हम देखेंगे लैंग्वेज फॉर टेलीफोन मैनर्स। अभी क्या है टेलीफोन मैनर्स? अगेन 21st सेंचुरी का वर्ड है ये। जब हमारे पास लैंडलाइन थे तब इतना नहीं फैशन में था जितना अब मोबाइल्स के केस में फैशन में है। या फिर टेलीफोन इंडस्ट्री, या फिर जिसको हम बोलते हैं वॉइस कॉलिंग प्रोसेस इंडस्ट्री जो है, खासकर कस्टमर सर्विस डोमेन की जब से इंडिया में आई है तब से बहुत बहुत ज्यादा फैशन में आ गया है कि आप फोन पे बात कैसे करते हो इस पर आपको नोट किया जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने फोन मिलाया किसी को, जैसे ये हेलो साइन ऑफ इंटरोगेशन। और साइन ऑफ इंटरोगेशन इज, ये जो हेलो आपने बोला ये एक क्वेश्चन की तरह बोला। तो आप क्वेश्चन कब करते हो? आप क्वेश्चन तब करते हो जब आप पहले बोलते हो। अगर आपको फोन आएगा उस टाइम आप आंसर करते हो, लेकिन जब आप किसी को फोन करते हो तब आप क्वेश्चन करते हो, तब आप आंसर नहीं करते। यू आर नॉट आंसरिंग ए फोन व्हेन यू मेक द कॉल योरसेल्फ। जब आपने खुद कॉल मिलाया होता है उस टाइम आप आंसर नहीं करते, इसीलिए हेलो के आगे क्वेश्चन मार्क है। ये मेरे से पूछा भी था पहले काफी सबने कि भाई क्वेश्चन मार्क क्यों आता है हेलो के आगे रिटन इंग्लिश में, या फिर हम इसको ऐसे क्वेश्चन क्यों ट्रीट करते हैं। अब मैं आपको फोन करूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा, आई आई एम मेकिंग द कॉल, आई एम नॉट आंसरिंग द कॉल। आप फोन उठाओगे, जब आपको फोन आएगा आप फोन उठाओगे, देन यू आर आंसरिंग द कॉल। सो इसलिए इस हेलो पे क्वेश्चन मार्क है। हेलो खान ट्रेडर्स, दिस इज अहमद स्पीकिंग। और आगे मेरी बात कि भाई आपका इतना बिल चुकता नहीं हुआ है। देयर इज वन बिल विच इज पेंडिंग राइट नाउ, द ड्यू डेट इज अप्रोचिंग, डू यू नो or do you have any estimated time of
paying the bill so that I can update my records. एक तो ये तरीका है. दूसरा है बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाय एना स्पीकिंग. अब मैं अगर किसी को फोन करूंगा और मैं जानता हूँ कि सामने वाला मेरे फोन का इंतजार कर रहा है और ही वाज एक्सपेक्टिंग माय फोन, देन आई विल स्ट्रेट से दैट हाय आई एम अहमद स्पीकिंग या हाय अहमद दिस साइड. फिर तीसरा है हेलो मिस्टर स्मिथ हाउ कैन आई हेल्प यू. अब यहाँ पर जो है ये आंसर है आपका. आपको किसी ने कॉल किया, आपने देखा अपने फोन पे कि मिस्टर स्मिथ कॉल कर रहे हैं, आपने फोन उठाते ही बोला हेलो मिस्टर स्मिथ हाउ कैन आई हेल्प यू. एक तो ये सिनारियो है. और दूसरा सिनारियो ये है कि आपने मिस्टर स्मिथ से पहले ईमेल पर या चैट पर बात की कि हाँ मैं आपको कॉल करूंगा, और फिर आपने कॉल किया और फिर आपने उनसे इशू पूछा हुआ है ऑलरेडी, या फिर आपको पूछना है इशू नया. उस टाइम आप ये फ्रेज इस तरह से यूज कर सकते हो, हेलो मिस्टर स्मिथ हाउ कैन आई कॉल यू, एंड देन आई एम रियली सॉरी ही इज नॉट अवेलेबल एज ऑफ नाउ, शैल आई आस्क हिम टू कॉल यू बैक. ये उस केस में है जब आपको कोई कहे कि अपने फादर को फोन देना, या फिर आपके ब्रदर को फोन कर रहा हूँ वो फोन उठा नहीं रहे, और वो वहां पर नहीं है, आपको मालूम है कि वो वहां नहीं है. उस टाइम आप उनको बोल सकते हो कि मैं माफी चाहता हूँ वो यहाँ नहीं है इस वक्त, तो क्या मैं उनको कहूँ कि वो बाद में आपको कॉल कर लें. और एक फ्रेज और है, आई एम अफ्रेड ही इज बिजी, कैन आई टॉक, कैन आई टेक ए मैसेज. अब मान लीजिए मेरी मिसेस को कॉल आ रहा है या मुझे कॉल आ रहा है और मैं किसी चीज में बिजी हूँ, तो ये फ्रेज मेरी मिसेस यूज कर सकती है, आई एम अफ्रेड ही इज बिजी, मैं वो काम कर रहे हैं, वो बिजी हैं, तो आप मुझे बताइए, मैं उनको बता दूंगी, कैन आई टेक ए मैसेज. एंड ऑब्वियसली कॉल डिस्कनेक्ट करने का तरीका, थैंक यू फॉर द कॉलिंग, या थैंक यू फॉर दिस कॉल, थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, गुड बाय. सो इस तरह से आप टेलीफोन मैनर्स का ध्यान रख सकते हो. क्लियर है सबको? Okay. So coming to the word root analysis and pronunciation section, this is the first word is liber, L-I-B-E-R. The second is lingu, L-I-N-G-U. Third is lock, and fourth is log or logo. So first word है liber. Liber होता है free, free मतलब freedom. So इसी तरह से word बना liberate. Liberate का मतलब आजाद छोड़ना, किसी को आजाद करना. To set free. लिबर्टाइन, लिबर्टाइन वो आदमी होता है जो आजाद जिंदगी जीता है. ए पर्सन विद ए फ्री वाइल्ड लाइफस्टाइल, जिसको कोई बंदिश नहीं होती, उसको कोई रिश्तों की या पैसों की या फिर घर बार की किसी चीज की बंदिश ना हो, और वो आजाद जिंदगी जिए, ना किसी चीज की टेंशन ले और ना ही किसी चीज की वरी करे. दैट इज लिबर्टाइन. एंड थर्ड इज लिबर्टी. लिबर्टी होता है फ्रीडम. So coming to the next one, that is lingu. Lingu is related to language or tongue. So linguistic होता है जो languages को सीखता है, one who studies languages. Multilingual is able to communicate in multiple languages. अब मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम था मल्टीलिंगुअल हायर सेकेंडरी स्कूल, जहाँ से मैंने 12th किया. ML हायर सेकेंडरी स्कूल. मल्टीलिंगुअल मतलब वहाँ एक से ज्यादा लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन किया जाता है. देन लिंग्वाइन होती है एक जुबान की शक्ल में लंबा फ्लैट पास्ता जिसको खाया जाता है. क्लियर है? चलो नेक्स्ट इज लॉक. लॉक इज प्लेस. जैसे लोकेशन है वैसे ही लॉक है. सो लॉक इज प्लेस. डिसलोकेट हो गया, अपनी जगह से यूजुअल प्लेस से अलग हो जाना. तो टू पुट समथिंग आउट ऑफ इट्स यूजुअल प्लेस, अपनी जगह यूजुअल जगह से बाहर आना, दैट इज डिसलोकेट. लोकेशन हो गया एक प्लेस, रीलोकेट हो गया टू मूव टू ए न्यू प्लेस. क्लियर? ओके. सो फोर्थ वन इज लॉग और लोगो. So log or logo is word, doctrine or discourse. So log से बना logic. Logic मतलब correct reasoning. Monologue is एक लंबी स्पीच को कहा जाता है monologue, a long speech by one speaker. Analogy या analogy, इसको दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है और दोनों करेक्ट हैं. पहले लोग बोलते थे it is analogy and अब लोग बोलते हैं it is analogy. एनालॉगी इसको इसलिए प्रोनाउंस किया जाता है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के बेसिस पे.
और एनालॉजी इसको जैसे लिंग्विस्टिक या लॉजिक बोलते हैं, उसी तरह एनालॉजी भी इसको बोला जाता है. सो इसका मीनिंग होता है सिमिलरली स्पेशली बिटवीन थिंग्स अदरवाइज डिसिमिलर. अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या. देखो, एनालॉजी या एनालॉगी उन चीजों की सिमिलरिटीज होती हैं जो होते तो अलग हैं, लेकिन आप उनमें कोई ना कोई चीज सेम निकाल लेते हो. जैसे चांद और सूरज, सन एंड मून, दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. वन इज एक्सट्रीमली हॉट, द अदर इज कोल्ड. बट इनमें एनालॉजी क्या है, दे बोथ राइज इन द स्काई. ये दोनों हमें आसमान में दिखते हैं, और एक सुबह में निकलता है, एक शाम में निकलता है. तो दोनों है तो डिफरेंट, बट दोनों आसमान में है, तो इनका आसमान में होना इज एनालॉजी. क्लियर है सबको एनालॉजी क्या है? चलो ठीक है, हम अब जाते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ, जिसमें आज हम शुरू करेंगे मॉडिफायर्स. सो बिफोर आई स्टार्ट, इज देयर एनीवन हु नोज व्हाट आर मॉडिफायर्स? मॉडिफायर्स होते क्या हैं? अरे कोई तो बता दो, मॉडिफायर्स क्या होते हैं? चलो मैं बताता हूँ. मॉडिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज, एक सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई करना मतलब उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालते हैं या उस सेंटेंस का बेड़ा गर्क कर देते हैं. अब इसका पर्पस क्या होता है मॉडिफायर का? मॉडिफायर का मेन पर्पस होता है, आप सेंटेंस को ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हो या उसमें और क्लैरिटी डालना चाहते हो, तब आप मॉडिफायर्स यूज करते हो. मॉडिफायर्स बेसिकली वर्ड होता है सिंगल, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, या एक कंप्लीट क्लॉज होता है. वो डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है. So the purpose of a modifier in a sentence is to clarify or further describe a word or phrase to give better meaning to the word it modifies. तो जिस वर्ड को, नाउन, वर्ब या एडवर्ब या प्रोनाउन, जिसको भी आप मॉडिफाई करना चाहते हो, उसको आप फर्दर क्लैरिफिकेशन या फर्दर उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मॉडिफायर यूज करते हो. अब क्लियर हुआ मॉडिफायर क्या होता है, या किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ? प्लीज मेरे को बताओ, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. इसके बाद मैं डेफिनेशन नहीं छेड़ूंगा, इसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे मॉडिफायर्स की. किसी को है डाउट? मरियम, रक्षंदा, फैसल, इरफाना, उरूस, नजाकत, और कौन है आज? बताओ, किसी को डाउट है? रक्षंदा? कोई भी वर्ड हम जो है लगा सकते हैं, या कोई वर्ब, हाँ, एडवर्ब. एग्जैक्टली. मॉडिफायर, आप किसी भी वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो. जैसे मैं आपको पहले हिंदी में एक एग्जांपल देता हूँ. मैं बोलता हूँ मेरे बाल हैं. ठीक है, दिस इज अ सेंटेंस. आई हैव हेयर, मेरे बाल हैं. अब मैं कैसे बोलूंगा मेरे बाल कहाँ पर है? आई हैव हेयर ऑन माई हेड. सो ऑन माई हेड इज ए मॉडिफायर. ये बालों को डिस्क्राइब कर रहा है, कि बालों की लोकेशन डिस्क्राइब कर रहा है. या फिर मैं बोलूंगा ऑन माई हेड देयर आर डेंस हेयर, या आई हैव ह्यूज हेयर ऑन माई हेड. मेरे बाल जो हैं वो घने हैं और बड़े हैं मेरे सर पर. तो बाल होना इज समथिंग, एंड वो उनका घना होना और उनका बड़ा होना, वो उनको फर्दर डिस्क्राइब या क्लैरिफाई करता है. एंड दिस इज मॉडिफायर. डेंस एंड ह्यूज हेयर, आई हैव डेंस एंड ह्यूज हेयर ऑन माई हेड. सो हेयर ऑन, आई हैव हेयर ऑन माई हेड हो गया मेन, जो बात आप बताना चाहते हो. लेकिन अगर इसको आप और क्लैरिटी के साथ या और इसको डिस्क्रिप्शन के साथ बताना चाहते हो, तो आई हैव ह्यूज एंड डेंस हेयर ऑन माई हेड. मेरे सर पर घने और बड़े बाल हैं. तो घने और बड़े इज मॉडिफायर. क्लियर है? अब इससे आप किसी भी वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो. सबको क्लियर है? ओके. सो कमिंग टू द टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, ये दो तरह के होते हैं. एक होता है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर और एक होता है डैंगल्ड मॉडिफायर. मैं इनकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा आज, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेशन अभी आधे घंटे का भी नहीं हुआ है आज. कुछ मेरी गलती है, मैं लेट आया हूँ, और फर्दर जब मैं लेट आता हूँ तो सभी लेट आते हैं. सो मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्या है? इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच रॉन्गफुली रेफर्स टू ए नाउन. पहली बात तो ये नाउन को रेफर करते हैं ये मॉडिफायर्स, और रॉन्गफुली रेफर करते हैं. रॉन्गफुली मतलब एक गलत वे में. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी का अभी. जैसे इस एग्जांपल को देखो, शी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हर मदर.
अब इस सेंटेंस को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हो ना, तो इसका ट्रांसलेशन बनता है कि वो अपनी माँ को नहीं समझा सकी कि वो शादी क्यों करना चाहती है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है सेंटेंस का। बट इसको अगर आप वर्ड टू वर्ड या लिटरेचरली इसका मीनिंग आप देखोगे ना, तो शी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हर मदर। तो अगर इसका आप गूगल ट्रांसलेशन करोगे, गूगल इसको कहेगा कि वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी कि वो अपनी माँ से शादी क्यों नहीं करना चाहती, व्हाई शी सॉरी माँ से शादी क्यों करना चाहती, व्हाई शी वांटेड टू गेट मैरिड टू हर मदर। तो ये समझ आया आपको इसमें मॉडिफायर क्या है और मिसप्लेस्ड मॉडिफायर क्यों है। देखो, इसका मॉडिफायर है टू हर मदर। शादी तो वो करना चाहती है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, ये मेन बात है। और इसको ज्यादा क्लैरिटी क्या है इसमें कि वो अब वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही अपनी माँ से कि वो क्यों शादी करना चाहती है। तो ये जो एंड में है ना टू हर मदर, इसको मैं अगर स्टार्टिंग में लगा देता हूँ यहाँ पर, शी कुड नॉट एक्सप्लेन टू हर मदर व्हाई शी वांटेड टू गेट मैरिड, तो इसकी ट्रांसलेशन जब आप देखोगे तो वो बिल्कुल करेक्ट आएगी कि वो अपनी माँ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वो शादी क्यों करना चाहती है। इसीलिए इन तरह के मॉडिफायर्स को हम बोलते हैं मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स। और दो खास बातें याद रखनी, ये हमेशा नाउन को रेफर करेंगे और ये दिखने में बिल्कुल सही होंगे, लेकिन अगर आप इनकी लिटरली ट्रांसलेशन देखोगे तो ये सेंटेंस का बड़ा गर्क कर चुके होते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को देख लो, अगर आप इसको गूगल ट्रांसलेट करोगे ना, अभी कोई एक कर लो, आपको पता लगेगा कि ये गलत क्यों हो रहा है। अदरवाइज इसका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है। एक बंदे को आप बोलोगे ना, जैसे मैं अपने फादर को बोलूंगा कि आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम गेटिंग मैरिड, सो ये बहुत वैलिड है। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम गेटिंग मैरिड, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैं शादी क्यों करने जा रहा हूँ। लेकिन इसको अगर मैं इस तरह से बोलूंगा, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाई आई एम गेटिंग मैरिड टू यू, तो ये जो है इसका अगर आप ट्रांसलेशन देखोगे वो बनता है कि मैं आप समझाना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे शादी क्यों करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली अपने फादर से थोड़ी शादी कर सकता हूँ। वैसे ही ये लड़की अपनी माँ से थोड़ी शादी कर सकती है। तो ये एक मॉडिफायर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। ये एक सेंटेंस को या फिर जो एक्ट ऑफ गेटिंग मैरिड है उसको एक्सप्लेन या क्लैरिफाई कर रही है, बट एक रॉन्ग वे में क्लैरिफाई कर रही है। ये क्लियर हुआ सबको? इसकी डिटेल्स हम कल और बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये इंग्लिश का। खासकर जो हम में सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम कुछ के वर्ड्स कुछ कहीं पर भी लगा देते हैं, यहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी काफी। क्लियर है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर का? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इज डैंगल्ड मॉडिफायर। अब डैंगल्ड मॉडिफायर क्या होता है? डैंगल्ड मॉडिफायर एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। तो डैंगल्ड मॉडिफायर एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमेशा मेन क्लॉज पे डिपेंड रहेगा और जिसका सब्जेक्ट या वर्ब डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे एक एग्जांपल है, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव। पोइटिक है थोड़ा, मतलब शेरो शायरी टाइप के। खूबसूरत ड्रेस में सिल्क की गाउन में उसने अपनी बीवी को अट्रैक्टिव पाया। सो अब ये जो है ना, देखो इसमें वो रॉन्गफुली रेफरेंस वाली कंडीशन नहीं है। मतलब इसमें अगर आप देखोगे, पहले तो इसमें मॉडिफायर पहचानो, मॉडिफायर क्या है और मेन बात क्या है। He found his wife attractive is the main sentence. कैसे? He found his wife attractive, ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन ए सिल्क गाउन ये एक इनकम्प्लीट या डिपेंडेंट क्लॉज है। और हमने मॉडिफायर की अभी डेफिनेशन पढ़ी डैंगल्ड मॉडिफायर की, कि ये एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किए जाते। अब ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन, इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा वर्ब है? वर्ब तो इसमें ड्रेस्ड है, लेकिन ब्यूटीफुली इसका सब्जेक्ट है या सिल्क गाउन इसका सब्जेक्ट है? तो ये आपको अच्छी तरह से क्लैरिफाई नहीं हो रहा। इसी सेम सेंटेंस को मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि ही फाउंड हिज वाइफ अट्रैक्टिव ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन।
ऑब्वियसली दोनों के बीच में कॉमा आएगा. He found his wife attractive, comma, beautifully dressed in a silk gown. इन दोनों सेंटेंसेस का अगर आप ट्रांसलेशन करोगे तो ट्रांसलेशन एक ही आएगा और इसका कॉन्टेक्स्ट भी एक ही बनता है. लेकिन यहाँ से आपको पता लगता है कि डैंगल्ड मॉडिफायर कौन सा है और मेन इसमें सेंटेंस या मेन क्लॉज कौन सा है. सो मेन क्लॉज डैंगल्ड मॉडिफायर के केस में हमेशा याद रखना, मेन क्लॉज जो होगा वो कंप्लीट सेंटेंस होगा, लेकिन एक ऐसा क्लॉज भी होगा उसके साथ जो कि इनकम्प्लीट होगा, जिस तरह से, या डिपेंडेंट होगा, जिस तरह से ये है ब्यूटीफुली ड्रेस्ड इन अ सिल्क गाउन. ये चीज क्लियर हुई सबको? इसके बारे में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे कल. आई थिंक 2 और दिन लगेंगे, 2 या 3 दिन इसको खत्म करने में. बट इसके खत्म होने के बाद आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में बहुत मजा आएगा. आपको एक्चुअली में आप फिगर आउट कर सकते हो कि कहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन को बहुत गलत वे में ले जाते हैं. जैसे हमने देखा कई बार, जैसे हमने येट ऑलरेडी और इसके केस में देखा था ना, येट और ऑलरेडी के केस में. तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था मुझे अपने एचआर से याद आ रहे थे, वो हर चीज के आगे ऑलरेडी लगाते थे. आई हैव मेल्ड यू ऑलरेडी. तो भाई मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था मेल करने को, तुमने क्यों मेल कर दिया मेरे को? सो यहाँ से आपको बड़ा मजा आने लगता है जब आपको चीजें पता लगती है ना. या फिर हैवंट यू लेफ्ट येट, तो अभी मेरी शिफ्ट खत्म ही नहीं हुई, तुम क्या शिफ्ट से पहले ही मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं छोड़ के चला जाऊं? अगले दिन मुझे नोटिस दे दोगे तुम कि भाई तुम्हारा हाफ डे है, तुम्हारी लीव काटी जाएगी. सो यहाँ से आपको बड़ा मजा आने लगता है जब आपको वर्ड्स की पता लग जाते हैं ना कि एक्चुअली में कहाँ यूज होने और हम कहाँ यूज करते हैं. तो मुझे बताओ अगर किसी को डाउट है इसमें तो. सबको क्लियर है? चलो ठीक है. सो वी शैल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. मेरे को ऑफिस वालों ने फिर से बुला लिया है. उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं ब्रेक लेकर बैठा हूँ. So thank you guys, you have been very wonderful once again. You are very generous as always. But day by day हमारा जो learning with the news section है वो tough होता जाएगा. So ये आप ही के लिए कि you guys can keep practicing and जो बोलने का जो डर है वो खत्म हो जाएगा. In case किसी को doubt है, you have my number, you can call me or you can WhatsApp me, and you have my email as well. You have the link to the channel, so you can comment anywhere. So thank you guys once again. Have a nice day. Bye.